is troubling you. Excuse me. It's about, again, this goes very well with the shadow वाला जो मैंने वो वाला वीडियो बनाया है, हीलिंग वाली वीडियो बनाई है, that you don't run away from your shadow, you don't run away from the darkness, because darkness is the place from where the light will come. You know that breakage, वहाँ से लाइट आएगा. बट फर्स्ट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू सिट विथ ऑल द troubled emotions. You will have to sit, acknowledge, understand, accept, heal, release, and then what happens? You integrate the light and the shadow, and then you become whole. And then you're not apologetic about what? Your shadow side. जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये मेरा शैडो है, मैं उस पर वर्क कर रही हूँ, then the world cannot lift finger on you for that. And if you have watched Game of Thrones, जो Tyrion, what was his name? Peter Dinklage या Dinklage something उनका नाम था. And he said no, जब आप अपने weakness को अपना strength बना लेते हैं, उसको अपना के, then the others cannot play on that. Anyways, आगे बढ़ेंगे. So this coming year is going to be a lot of it's universe उसको बोल रहा है, उसके spirit guides बोल रहे हैं, हमारे spirit guides बोल रहे हैं कि it's time to take it easy, be more silent, be with yourself, go slow, because यहाँ पे कुछ deep inner work होने का ये है. Gold, you don't need someone else to fix you. How beautiful is this? You don't need someone else to fix you. These are all the breakages in this ceramic का cup है, और it's a ritual in Japan जहाँ पे जब ये crockery जो है ना शीशे की टूट जाती है, तो they fill it with gold and they don't kind of throw it away, they fill it with gold. And the philosophy behind this is कि ये जो भी चीज़ टूटती है हमारे दिल में, जो भी इंसिडेंट्स, जो भी रिश्ते, जो भी चीज़ हमारे लाइफ में हमको तोड़ देती है या तोड़ के चली जाती है, उसको अगर आप एक्सेप्ट कर लें और उसको आप अपनी लर्निंग से भर दें, तो वो विजडम हो जाता है, वो आपको और भी स्ट्रांग बना देता है. तो यू डोंट हैव टू बी शाय ऑफ योर ब्रोकन सेल्फ और योर ब्रोकन हार्ट. दैट हैज गॉट यू सो मच ऑफ विजडम. उस चीज़ ने, जो भी चीज़ ने आपको तोड़ा है, अगर आप उसको अच्छे से बैठ के एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके विजडम को समझ लेते हैं, तो वो चीज़ आपको 10 टाइम्स स्ट्रांग बना देती है. एंड देन यू राइज लाइक अ फीनिक्स. एंड यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू. You can take care of yourself, and importantly, you don't have to be shy of your wounds, you don't have to be shy of your scars, you don't have to be shy of your difficulties, because there is a reason why you have chosen those difficulties. If I go at a soul level, क्योंकि इनके सोल ने ही ये सारी difficulties choose की है, तो there is no point for others to make fun of any other person. तो वहाँ से विजडम आएगा. यू जस्ट हैव टू एम्ब्रेस योर ऑल पार्ट्स. तो दिस ईयर इज गोइंग टू बी अबाउट, अगेन यू सी हाउ दिस 3 cards आर मेकिंग सेंस एंड इंटरट्वाइनिंग विथ ईच अदर. यहाँ पे है कि शांत हो जाओ, बी साइलेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लटर में आप अपने आप पे इनर वर्क नहीं कर पाओगे. यू नीड सम काइंड ऑफ सॉलिट्यूड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, बी विथ योर सेल्फ. देयरफॉर गो स्लो इन द फिजिकल वर्ल्ड. It's okay if you're not partying 24/7. It's okay if you're not partying every day. It's okay if you're not showing up on social media every day. Be with yourself. Accept your light and the dark, shadow. Accept your light and the shadow. Anything that has broken. Accept, it's जैसा कि मैंने आपको explain किया. Accept your shadow. Integrate it with light. Become whole. एंड देन दिस शैडो क्या करती है, ये आपके लाइट को और भी तेज करती है, एम्पावर करती है. चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है. सेंसिटिविटी. एग्जैक्टली. नाउ डू यू सी दिस सेंसिटिविटी. देयरफॉर गो स्लो. यू आर वर्किंग. शी इज वेरी सेंसिटिव. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सेंसिटिव ईयर फॉर हर बिकॉज ऑफ द वून्स. मून फेज. मून स्पेसिफिकली शोइंग अप हियर. यहाँ पे भी मून दिख रहा है हमको. स्लो बोला है.
We have White Tara, and she is telling you are becoming increasingly sensitive. Avoid harsh relationship, environments, situation and chemicals. तो आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज जो उसको ट्रिगर कर सकती है वो उन सारी चीजों को अवॉइड करेगी. क्यों अवॉइड करेगी? बिकॉज शी इज इन अ वेरी डेलिकेट सेंसिटिव प्लेस इन द कमिंग टाइम्स, जहां पे वो अननेसेसरली बोलते, वैसे भी हमें अपने एनवायरमेंट को सेफ ही रखना चाहिए, क्लेंस करके रखना चाहिए. वी शुड बी विथ पीपल वी वांट टू बी, बट व्हेन यू आर एक्स्ट्रा सेंसिटिव विथ योर वूंड्स, it becomes more important for you to stay with a place and people who are positive, at least not toxic. तो वो चीजें हैं. यहाँ पे क्या आ रहा है? Endings and beginnings, and this is a beautiful card to get on a birthday, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक मून फेज चल रहा है. इट्स टाइम अबाउट प्रोसेसिंग समथिंग, क्योंकि देखो यहाँ पे हीलिंग हो ही रही है. इसका पूरा साल हीलिंग ही चल रहा है अगर हम अभिषेक के साथ वाली डायनामिक्स पकड़े तो. और यहाँ पे अभिषेक के साथ हीलिंग क्यों चल रही है? क्योंकि वो खुद अपने आप को हील कर रही है. तो जो पर्सनल लेवल पे है वो अदर लेवल पे भी होगा. इट्स वेरी सिंपल. अगर आप दुखी हैं तो आप दूसरों के साथ खुश नहीं रह सकते हैं ना. तो शी नीड्स टू डू, शी इज डूइंग हर ओन हीलिंग. एंड जब हीलिंग होगी, एंड अगेन द एवरीथिंग दैट आई टोल्ड यू, यू सिट विथ योर शैडो, लिसन टू इट. क्या आपको वो बोलना चाहता है? यू डोंट हैव टू रिजेक्ट योर शैडो. You also don't have to, cut your shadow off. बस उसकी बात सुननी रहती है एंड उसको एक्सेप्ट करना रहता है. एंड इट इंटीग्रेट्स विथ योर लाइट एंड यू बिकम होल. ऐसा नहीं है कि आपको शैडो को पूरी तरह से आपको लाइट में बदलना है. वो जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, इट स्टॉप्स इंटरफेयरिंग इन योर जर्नी. योर शैडो इंटरफेयर्स इन योर जर्नी only when you are not paying attention to it, when you are ignoring it, listening to others. But once you integrate it with it has healed. Therefore, it will not come in your way going forward. तो transmutation anyways हो जाता है. And this is a beautiful endings and beginnings. It's not beginnings and endings, it is endings and beginnings. यानी कि ये जो फेज चल रहा है ना उसकी हीलिंग का, जहां पे उसके वुंड्स को हील करना है. हील करने के बाद क्या आएगा? इट विल कम, अ चैप्टर विल क्लोज ऑन दैट चैलेंजिंग फेज ऑफ हर, एंड देन व्हाट विल हैपन? न्यू बिगिनिंग्स विल हैपन. तो यहाँ पे आप पूरी चीजें देख रहे हैं, यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग भी आ रहा है. द ओल्ड मस्ट बी रिलीज्ड बाय हीलिंग इट सो दैट द न्यू कैन एंटर. एंड ब्लेसिंग्स क्या आ रही है उसके लिए? Get your power back. And how beautiful is this? You have forgotten who you are. और मुझे याद भी है, I did mention this on her reading that she used to be this fiery queen of wands. और अभी आजकल जो उसकी last few months की एनर्जी है वो उसकी queen of cups and reverse, as in more feeling very vulnerable वाली एनर्जी है. As if the world is on top of her, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, वो वाली एनर्जी है. और इसीलिए उसे ये गाइडेंस आया है, get your power back, because you are that queen of wands, vibing with lot of passion, action, enthusiasm, fiery energy है. तो get back into your elements, because that is your element of queen of wands. You have forgotten who you are a child of the divine, so take your power back. तो ये सारे गाइडेंसेस उसके किस लिए आ रहे हैं? आने वाले साल के लिए आ रहा है. ठीक है, तो चलो अब हम इसको यहाँ पे रख देंगे. एंड in the next video we will start with the tarot guidance. I will see you in the next video, guys.